آج میں ناموں کے بارے میں کچھ چیزیں آج کروں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ نام سوچ سمجھ کے رکھا کریں، اپنی اولاد کے، اپنی نسلوں کے، اپنے بچوں کے۔ پھر اس نام تبدیل کرنے والے بہت آتے ہیں کہ نام تبدیل کریں، بہت آتے ہیں۔ یا یہ کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے، یہ لوگ بہت آتے ہیں کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے۔ کیوں کیے؟ اس نے کہ جی فلاں نے کہا تھا یہ نام بھاری ہے، فلاں نے کہا تھا، اس لیے ہم نے تبدیل کر دیے۔ نام سوچ سمجھ کے رکھیں، انوکھے انوکھے نام، عجیب و غریب نام۔ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ نام بدلتے بدلتے، نام سنتے سنتے، تیرا نام تیری والدہ کا نام، نام پڑھتے پڑھتے گزر گیا میری زندگی کا بہت بڑا حصہ۔ اگر ہم نے اپنے ناموں کو نہ سمجھا نقصان ہوگا۔ ایک اللہ والے کہنے لگے، میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگے جی بچہ ہے، ہر وقت بیمار رہتا ہے، اس کو چوٹیں لگتی ہیں، اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے پوچھا تیرے بچے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بچے کا نام ہے المان۔ علم عین والا ہے تو اس کے معنی جھنڈے کے ہیں، الف لام میم ہے اس کے معنی ہائے ہائے کے ہیں، درد تکلیف، ہائے ہائے ہائے۔ المان، الف لام میم الف نون، اس سے معنی دو دردوں کے ہیں، دو چوٹوں کے ہیں، دو زخموں کے ہیں، دو تکلیفوں کے ہیں۔ ایک تکلیف نہیں، دو تکلیفیں ہیں۔ میں نے کہا اس کا نام ہے اور ساری زندگی یہ علم میں رہے گا، یعنی علم عین والا، اس کے معنی جھنڈا کے ہیں، المان۔ میں نے کہا فوراً نام تبدیل کرو، اور کہا نام تبدیل کیا تو بچے کی صحت ٹھیک ہو گئی، چوٹیں لگتی تھیں، تکلیف ہوتی تھی، نام اس کا فوراً بدلا۔ ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا مر ہے۔ مر عربی میں کہتے ہیں کڑوے کو، فرمایا تیرا نام حلو ہے، حلو، حلوہ، حلو تو میٹھا ہے۔ نام بدل دیا۔ آقا تشریف لے گئے، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یثرب ہے۔ یثرب مانے دکھوں اور غموں اور پریشانیوں اور مشکلوں اور مسائل کا گھر۔ فرمایا نہیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ کہتے ہیں باغ، باغ و بہار، ہوائیں، فضائیں، ٹھنڈی نعمتیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ نام بدلا۔ ایک جگہ سے گزرے، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا مشقت بھرا نام بتایا۔ فرمایا نہیں، تیرا نام سہل ہے، ثانیہ ہے۔ ایک بندے کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام شہاب ہے۔ شہاب کہتے ہیں شعلے کو۔ میں نا تو آگ لگانے والا نہیں ہے، اس کا نام بدل دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ممبر تھا کھجور کا تنا تھا، اب اس پہ تشریف رکھتے تھے، مجمع بڑھ گیا تو کھجور کا تنا ہو گیا، پھر مجمع اور بڑھ گیا، مشورہ ہوا کہ حضور کی لکڑی کا ممبر بنایا جائے۔ تو آخر مجمع میں حضور نے فرمایا کون میری لکڑی کا ممبر بنائے گا؟ ایک کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، ایک کھڑا ہوا تو آپ نے پوچھا نام کیا ہے تیرا؟ کہا ابراہیم۔ کہا ہاں میرے جد امجد کا نام ہے۔ اور اس نے کہا انشاءاللہ، اور میرے حضور کو یاد پسند آئی اور حضور نے فرمایا ہاں تو ممبر بنائے گا۔ آپ جس وادی میں تشریف لے جاتے تھے اس وادی کا نام اگر ایسا ہوتا جو تکلیف دے، پریشان کن ہوتا، اس جگہ کا نام بدل دیتے تھے۔ جانوروں کے نام بدلے، بعض لوگوں نے اپنے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ میرے حضور کے جو جانور تھے خدمت والے، ان کے بھی نام تھے، اس طرح لوگوں کے جانوروں کے نام حضور نے وہ بدلے۔ آپ کہتے ہیں نام کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں بندے کا نام آج کے بعد شیطان رکھ لیتے ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب محترم شیطان صاحب، کمال کر انہوں نے کہا جی فرعون صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بھائی عجیب بات ہے، تم نے لفظ صاحب کی بھی توہین کی ہے۔ فرعون کے ساتھ صاحب لگے، شیطان کے ساتھ صاحب لگے۔ اچھا انہوں نے کہا آپ کو تکلیف ہوئی، معذرت چاہتے ہیں، ناموں انہوں نے کہا ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تکلیف معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کا نام رکھ لیتے ہیں دجال۔ اب تو ٹھیک ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، پریشان ہوئی، چلو آپ کا نام ابو جہل رکھ لیتے ہیں۔ بولے پھر کیا ہوگا؟ نام ہے، نام سے غصہ آ گیا ایک دم، اس نے کہ جی ابو جہل آ رہا ہے۔ میں طواف زیارت کر کے نا عزیزیت کی طرف جا رہا تھا، ایک ٹیکسی لی، رش تھا بہت زیادہ، ایک ٹیکسی والا نا ایسے نکل رہا تھا، اس میں سے نکلتے نکلتے نا تو میرے ساتھ ٹیکسی والا بیٹھا تھا، عرب تھا، اس نے شیشہ کھولا، شیشہ کھول کے کہا حیوان، پھر شیشہ بند کر کے چل پڑا، تو جانور ہے۔
मालूम हुआ लफ्ज हैवान कहना भी इतना भारी लफ्ज है, उसने सारा गुस्सा सिर्फ इससे निकाल दिया, हैवान। नामों का हमारी जिंदगी पे असर है। आले रसूल नामों की कितनी एहतियात करते थे और नामों पर कितनी तवज्जो करते थे। आले रसूल का की जिंदगी में नामों पे कितनी एहतियात थी और नामों के ऊपर कितना तवज्जो फरमाते थे और नामों के कितना ज्यादा सोच समझ के रखते थे। मैं आज आपको वो नाम बताता हूं कि उनकी जिंदगी में नाम कौन से थे, उनके खानदान के नाम कौन से थे। ये जो 72 शुहदाए करबला हैं, मैं उनके नामों की लिस्ट आपके सामने, आप इन नामों को देखें कि खुद मेरे कमली वाले ने अपने बेटों के नाम और अपने नवासों के नाम क्या रखे। मैं जब हजरत इमाम हसन पैदा हुए तो मशवरा हुआ इसका नाम हर्ब रखा जाए। हर्ब कहते हैं बहुत ज्यादा ताकतवर, ऐसा कि जो हर किसी को हरा दे, पूरे लश्कर पे गालिब आ जाए। फरमाया नहीं, इसका नाम अर्शों से आया है। मेरे अल्लाह कहता है इस मेरे बेटे का नाम हसन, अर्श से आया नाम आया है, जमीन से नाम नहीं आया। फिर हजरत हुसैन पैदा हुए, फिर उनके बारे में फरमाया इसका नाम क्या रखा जाए, कहा हर्ब रखा जाए। फरमाया नहीं, अल्लाह ने अर्शों से इस मेरे बेटे मेरे नवासे का नाम रखा है हुसैन। नामों को सोच समझ के रखा। अपने बेटों का नाम कासिम रखा, तैयब ताहिर रखा, नाम सोच समझ के। अब्दुल्ला है, सोच समझ के। अपनी बेटियों का नाम देखिए कितने कैसे रखा, रुकैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, फातिमा, रिजवानुल्लाह सलामुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन। नाम एहतियात से रखे। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाई है मेरे घर से टेंशन, परेशानी, बेसुकूनी खत्म हो गई है। तो बता दूं ये आयत नजर बद का बेहतरीन इलाज है। खातून का जवान बच्चा था, जादू से उसकी कमर टेढ़ी हो गई थी। एक किसी ने तस्बीह खाने से ही सुना होगा, उन्होंने बताया, जादू टूट गया और कमर सीधी हो गई, जवान बेटा सेहतमंद हो गया। यही बात है। और किसी को इस आयत का कोई कमाल, कोई तासीर, कोई नफा, कोई फायदा, कोई मकोड़े हों, क्यों भाई किसी ने आजमाया? हाँ, आपने आजमाया। और किसने आजमाया? आप। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, छिपकलियां हो, काकरोच हो, दीमक हो, और घर में कोई अनोखी चीजें निकलती हो, और जुओं का भी लाजवाब इलाज है, जिनके सर पे जुएं में नहीं जाती। और एक बात आपको बता दूं, ये आयत नजर बद का बेहतरीन इलाज है। और ये वजीफा जिन्नात शयातीन का खुद कारी इलाज है। एक छोटी सी आयत है, 3 साल हो गए मैंने लगाई है, कह रहे हैं। उसके बाद सांप जहर हुए, मरे हैं, लेकिन उन सांपों ने मेरी जानवरों को नहीं काटा, और उससे पहले मेरे 3 जानवर ज़ाय हो चुके हैं। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाई है मेरे घर से टेंशन, परेशानी, बेसुकूनी खत्म हो गई है। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाया है मेरे घर में चैन आता है, सुकून आता है, बीमारियां खत्म हैं। और अगला कहता है जब से मैंने ये लगाए हैं मेरे घर से चोरियां खत्म हो गई हैं, जेवरात और पैसों की चोरियां। याद रखिएगा, सारी दुनिया की साइंस जहां से जहां चली जाए, मेरे कमली वाली की वही और जो अर्शी निजाम है और अर्शी हिफाजत का निजाम है, ये सारी जिंदगी रहेगा। ये क्या है? मेरा कमाल है? नहीं, कुरान और वही का कमाल है। हम तो खताकार हैं, लेकिन फिर भी सोचता हूं वही की बरकत हमारे लिए भी है। अल्लाह इतनी बरकतें दे देता है। मैं सहरा में बैठा था, मार्च था, बड़ा बहार का मौसम होता है सहरा का, सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बैठा था एक झोंपड़ी में, इधर से धूप आ रही थी, इधर से धूप, बैठा रहा। ये मैंने पढ़ा हुआ था। जब मैं घंटों के बाद उठा ना, तो मेरे नीचे कोई खेस बिछा हुआ था। मैंने जो खेस उठाया, इतना बड़ा कन खजूरा मेरे नीचे से निकला, और नीचे से निकल के वो कन खजूरा एक केस मेरे पास आया। मैं सिर्फ देखने की बात कर रहा हूं। वो ये आया कि मेरे कमरे में सांप की लकीर जाती है,
कच्चे घर, कहां मार्बल, कहां चीजें, कच्चे घर। दरअसल वो सांप की लकीर नहीं थी, वो असल में आपस में सींग अड़े हुए थे। कोई घर में कोई आपस में दुश्मनी और मुखालफत चल रही थी। एक देवरानी ऐसा करती कि वहां ऐसे अंदाज से लकीर उसके कमरे में लगा देती कि सांप यहां से कमरे के अंदर दाखिल हुआ है। ये जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल ठंडी मीठी थी, इवें जिवें घ्यू दा घड़ा होंदे। ये जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल थी। उसने क्या किया, उसने कहा मैं तेरा सुकून बर्बाद कर दूंगी। वो एक लकीर लगा देती थी ऐसी। आज मैं नामों के बारे में कुछ चीजें आज करूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। नाम सोच समझ के रखा करें, अपनी औलाद के, अपनी नस्लों के, अपने बच्चों के। फिर इस नाम तब्दील करने वाले बहुत आते हैं कि नाम तब्दील करें, बहुत आते हैं। या ये कि नाम हमने तब्दील कर दिए, ये लोग बहुत आते हैं कि नाम हमने तब्दील कर दिए। क्यों किए? उसने जी फलां ने कहा था ये नाम भारी है, फलां ने कहा था, इसलिए हमने तब्दील कर दिए। नाम सोच समझ के रखें। अनोखे अनोखे नाम, अजीबो गरीब नाम। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नाम बदलते बदलते, नाम सुनते सुनते, तेरा नाम तेरी वालदा का नाम पढ़ते पढ़ते गुजर गया। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा। अगर हमने अपने नामों को ना समझा, नुकसान होगा। एक अल्लाह वाले कहने लगे, मेरे पास एक बंदा आया, कहने लगे जी बच्चा है, वो हर वक्त बीमार रहता है, उसको चोटें लगती हैं, उसको तकलीफें होती हैं। तो मैंने पूछा बच्चे का नाम क्या है? कहा मेरे बच्चे का नाम है अलमान। अलम ऐन वाला है तो उसके माने झंडे के हैं। अलिफ लाम मीम है, उसके माने हाय हाय के हैं, दर्द तकलीफ, हाय हाय हाय। अलमान, अलिफ लाम मीम अलिफ नून, इससे माने दो दर्दों के हैं, दो चोटों के हैं, दो जख्मों के हैं, दो तकलीफों के हैं। एक तकलीफ नहीं, दो तकलीफें हैं। मैंने कहा इसका नाम है और सारी जिंदगी ये अलम में रहेगा, यानी आलम आइन वाला, उसके माने झंडा के हैं, अलमान। मैंने कहा फौरन नाम तब्दील करो, और कहा नाम तब्दील किया तो बच्चे की सेहत ठीक हो गई, चोटें लगती थी, तकलीफ होती थी, नाम उसका फौरन बदला। एक शख्स मेरे आका की बारगाह में आया, पूछा तेरा नाम क्या है? कहा मुर है। मुर अरबी में कहते हैं कड़वे को। फरमाया तेरा नाम हलू है, हलू हलवा, हलू तो मीठा है। नाम बदल दिया। आका तशरीफ ले गए, पूछा इस जगह का नाम क्या है? उन्होंने कहा यसरिब है। यसरिब माने दुखों और गमों और परेशानियों और मुश्किलों और मसाइल का घर। फरमाया नहीं, इसका नाम मदीना है। मदीना कहते हैं बाग, बागो बहार, हवाएं, फजाएं, ठंडी नेमतें। इसका नाम मदीना है। नाम बदला। एक जगह से गुजरे, आपने पूछा तेरा नाम क्या है? तो उसने अपना मुशक्कत भरा नाम बताया। फरमाया नहीं, तेरा नाम सहल है, आसानिया है। एक बंदे का नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम शहाब है। शहाब कहते हैं शोले को। मैं ना तू आग लगाने वाला नहीं है। उसका नाम बदल दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिंबर था, खजूर का तना था। आप उस पर तशरीफ रखते थे, मजमा बढ़ गया तो खजूर का तना हो गया, फिर मजमा और बढ़ गया। मशवरा हुआ कि हुजूर की लकड़ी का मिंबर बनाया जाए। तो आखिर मजमे में हुजूर ने फरमाया कौन मेरी लकड़ी का मिंबर बनाएगा? एक खड़ा हुआ, आपने फरमाया अच्छा ठीक है। दूसरा खड़ा हुआ, तीसरा खड़ा हुआ, एक खड़ा हुआ। तो आपने पूछा नाम क्या है तेरा? कहा इब्राहिम। कहा हाँ, मेरे जद्द अमजद का नाम है। और उसने कहा इंशाअल्लाह। और मेरे हुजूर को याद पसंद आई और हुजूर ने फरमाया हाँ तू मिंबर बनाएगा। आप जिस वादी में तशरीफ ले जाते थे, उस वादी का नाम अगर ऐसा होता जो तकलीफ दे, परेशान कौन होता, उस जगह का नाम बदल देते थे। जानवरों के नाम बदले। बाद लोगों ने अपने जानवरों के नाम रखे हुए थे। मेरे हुजूर के जो जानवर थे खिदमत वाले, उनके भी नाम थे। इस तरह लोगों के जानवरों के नाम हुजूर ने वो बदले। आप कहते हैं नाम कुछ नहीं है। मैं कहता हूं बंदे का नाम आज के बाद शैतान रख लेते हैं। अब तशरीफ लाते हैं जनाब मोहतरम शैतान साहब, कमाल कर। उन्होंने जी फिरौन साहब तशरीफ लाते हैं। भाई अजीब बात है, तुमने लफ्ज साहब की भी तौहीन की है। फिरौन के साथ साहब लगे, शैतान के साथ साहब लगे।
अच्छा, उन्होंने कहा आपको तकलीफ हुई, माजरत चाहते हैं, नाम, उन्होंने कहा नामों से क्या होता है? उन्हें तकलीफ माजरत चाहते हैं, हम आपका नाम रख लेते हैं दज्जाल। अब तो ठीक है, ये बड़ी ज्यादती है, परेशान हुई, चलो आपका नाम अबू जहल रख लेते हैं। बोले फिर क्या होगा? नाम है, नाम से गुस्सा आ गया एकदम, उसने कि जी अबू जहल आ रहा है। मैं तवाफ़े ज़ियारत करके ना अजीजियत की तरफ जा रहा था, एक टैक्सी ली, रश था बहुत ज्यादा, एक टैक्सी वाला ना ऐसे निकल रहा था, उसमें से निकलते निकलते ना, तो मेरे साथ टैक्सी वाला बैठा था, हर अरब था, उसने शीशा खोला, शीशा खोल के कहा हैवान, फिर शीशा बंद करके चल पड़ा। तू जानवर है। मालूम हुआ लफ्ज हैवान कहना भी इतना भारी लफ्ज है, उसने सारा गुस्सा सिर्फ इससे निकाल दिया, हैवान। नामों का हमारी जिंदगी पे असर है। आले रसूल नामों की कितनी एहतियात करते थे और नामों पर कितनी तवज्जो करते थे। आले रसूल का की जिंदगी में नामों पे कितनी एहतियात थी और नामों के ऊपर कितना तवज्जो फरमाते थे और नामों के कितना ज्यादा सोच समझ के रखते थे। मैं आज आपको वो नाम बताता हूं कि उनकी जिंदगी में नाम कौन से थे, उनके खानदान के नाम कौन से थे। ये जो 72 शुहदाए करबला हैं, मैं उनके नामों की लिस्ट आपके सामने, आप इन नामों को देखें कि खुद मेरे कमली वाले ने अपने बेटों के नाम और अपने नवासों के नाम क्या रखे। मैं जब हजरत इमाम हसन पैदा हुए तो मशवरा हुआ इसका नाम हर्ब रखा जाए। हर्ब कहते हैं बहुत ज्यादा ताकतवर, ऐसा कि जो हर किसी को हरा दे, पूरे लश्कर पे गालिब आ जाए। फरमाया नहीं, इसका नाम अर्शों से आया है। मेरे अल्लाह कहता है इस मेरे बेटे का नाम हसन, अर्श से आया नाम आया है, जमीन से नाम नहीं आया। फिर हजरत हुसैन पैदा हुए, फिर उनके बारे में फरमाया इसका नाम क्या रखा जाए, कहा हर्ब रखा जाए। फरमाया नहीं, अल्लाह ने अर्शों से इस मेरे बेटे मेरे नवासे का नाम रखा है हुसैन। नामों को सोच समझ के रखा। अपने बेटों का नाम कासिम रखा, तैयब ताहिर रखा, नाम सोच समझ के। अब्दुल्ला है, सोच समझ के। अपनी बेटियों का नाम देखिए कितने कैसे रखा, रुकैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, फातिमा, रिजवानुल्लाह सलामुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन। नाम एहतियात से रखे। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाई है मेरे घर से टेंशन, परेशानी, बेसुकूनी खत्म हो गई है। तो बता दूं ये आयत नजर बद का बेहतरीन इलाज है। खातून का जवान बच्चा था, जादू से उसकी कमर टेढ़ी हो गई थी। एक किसी ने तस्बीह खाने से ही सुना होगा, उन्होंने बताया, जादू टूट गया और कमर सीधी हो गई, जवान बेटा सेहतमंद हो गया। यही बात है। और किसी को इस आयत का कोई कमाल, कोई तासीर, कोई नफा, कोई फायदा, कोई मकोड़े हों, क्यों भाई किसी ने आजमाया? हाँ, आपने आजमाया और किसने आजमाया? आप। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, छिपकलियां हो, काकरोच हो, दीमक हो और घर में कोई अनोखी चीजें निकलती हो, और जुओं का भी लाजवाब इलाज है जिनके सर पे जुएं में नहीं जाती। और एक बात आपको बता दूं, ये आयत नजर बद का बेहतरीन इलाज है और ये वजीफा जिन्नात शयातीन का खुद कारी इलाज है। एक छोटी सी आयत है, 3 साल हो गए मैंने लगाई है, कह रहे हैं। उसके बाद सांप जहर हुए, मरे हैं, लेकिन उन सांपों ने मेरी जानवरों को नहीं काटा और उससे पहले मेरे 3 जानवर ज़ाय हो चुके हैं। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाई है मेरे घर से टेंशन, परेशानी, बेसुकूनी खत्म हो गई है। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाया है मेरे घर में चैन आता है, सुकून आता है, बीमारियां खत्म हैं। और अगला कहता है जब से मैंने ये लगाए हैं मेरे घर से चोरियां खत्म हो गई हैं, जेवरात और पैसों की चोरियां। याद रखिएगा, सारी दुनिया की साइंस जहां से जहां चली जाए, मेरे कमली वाली की वही और जो अर्शी निजाम है और अर्शी हिफाजत का निजाम है, यह सारी जिंदगी रहेगा। ये क्या है? मेरा कमाल है? नहीं, कुरान और वही का कमाल है। हम तो खताकार हैं, लेकिन फिर भी सोचता हूं
वही की बरकत हमारे लिए भी है। अल्लाह इतनी बरकतें दे देता है। मैं सहरा में बैठा था, मार्च था, बड़ा बहार का मौसम होता है सहरा का, सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बैठा था एक झोंपड़ी में, इधर से धूप आ रही थी, इधर से धूप, बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। ये मैंने पढ़ा हुआ था। जब मैं घंटों के बाद उठा ना, तो मेरे नीचे कोई खेस बिछा हुआ था। मैंने जो खेस उठाया, इतना बड़ा कन खजूरा, इतना बड़ा कन खजूरा मेरे नीचे से निकला, और नीचे से निकल के वो कन खजूरा एक केस मेरे पास आया। मैं सिर्फ देखने की बात कर रहा हूं। वो ये आया कि मेरे कमरे में सांप की लकीर जाती है। कच्चे घर, कहां मार्बल, कहां चीजें, कच्चे घर। दरअसल वो सांप की लकीर नहीं थी, वो असल में आपस में सींग अड़े हुए थे। कोई घर में कोई आपस में दुश्मनी और मुखालफत चल रही थी। एक देवरानी ऐसा करती कि वहां ऐसे अंदाज से लकीर उसके कमरे में लगा देती कि सांप यहां से कमरे के अंदर दाखिल हुआ है। ये जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल ठंडी मीठी थी, इवें जिवें घी का घड़ा होंदे। ये जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल थी। उसने क्या किया, उसने कहा मैं तेरा सुकून बर्बाद कर दूंगी। वो एक लकीर लगा देती थी ऐसे।